Good evening, ma'am. How are you, ma'am? I am great. I'm feeling awesome. What about you, dear? I'm also fine, ma'am. Very good. So, I think is it possible for you to attend the class on 8 to 9 a daily basis? Because I saw that you were quite busy, particularly in this time. So that's what I am asking for. Yes, ma'am, you are right. Due to my schedule change, I'm not able to attend 8 to 9 class. But your class is already scheduled from 9 to 10. Am I right? Yeah. So what timing will be preferable? You 7 to 8 it's not possible because already I have one class is there. In morning also it's not morning possible for you? In morning before 6 o'clock, because after 6 o'clock I have to make breakfast for myself, and till 8 or 8:30 I have to reach in office. Before 6 o'clock, how is it possible? It's a bit quite critical to manage that time. Yes. So if you are able to take the classes from 10 to 10:30, it is possible. I can understand that it's only half an hour. That's it, 30 minutes. But if you are that much busy in your schedule and all, because I think in 10 days, within the 10 days you attend, I think most of the time you didn't attend the session. So it's it's becoming a distraction about the learnings between you and me, isn't it? So it should go and on regular basis, so that we can get a track that this time we should discuss on this topic. Otherwise we could just get out from my mind that what the topic has been discussed already, what the next should be there. Yeah, ma'am. So if you are, because up to 11 it's not that much. I don't think that that much energy is remaining after the classes and all. So 10 to 10:30 if you are but if you are agree, then I will end up the session before 10, means 4 minutes before, like that. I would try to send them the link before 10 minutes, like that I can do. 10 to 30 to 40 minutes if you can get. So is it possible, is it applicable, or is it are you comfortable with that? If it is so, then no problem from my side. Let's see in coming week if schedule is distracted and timing is not suitable for both of us, then we will reschedule till 10:30. Okay, 10:30. Make it. But as I know that it's a short period of time, session is at least 1 hour. But if we are regular, then it would be covered. It will be covered, isn't it? The subject matters when our topic, our focus should be on speaking, isn't it? So that if we get 15 minutes time, that's also enough. And if we are getting more than that, it's very good for us, isn't it? So let's see if you are taking regular 10 day, 2 days, 3 days. That means absence. You are absent in the sessions. Then it might be possible that you can take it on the next session. That 10 to 10:30. Before 10 minutes, I can give, no problem. But you try to manage at that time. Okay. Yeah, I will try, but in this week we will remain on this timing. It's all about your comfort zone. Okay. If you are convenient, if you are convenient, then it's okay for me. Yeah. That's the thing.
let's do this week and we'll reschedule. Yeah, if you inform me and be aware that whether you are you can maintain this session in this time or not. Just be aware and just watch it. Okay, so I just leave it to you. Okay. Yeah. I will confirm. Yeah. Thank you. So let's start the session. And the session we shall be talking on a discussion between a teacher and a student. आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एक टीचर और एक स्टूडेंट में क्या बात होती है, वो क्या बोलते हैं, कैसे क्या होता है, उसको हम ट्रांसलेट करके देखेंगे कि आखिर में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से कैसे बोला जा सकता है. ठीक है. Okay, so you listen to me. After that, if you have any question, you can ask me. And if you have no any question, then you will do the same. आप भी ऐसा कुछ बनाओगे, ठीक है, हिंदी में लिख के आप बनाओगे, बनाकर इसको ट्रांसलेट करके बोलोगे. अगर यहाँ पे कोई ग्रामर क्या ये इश्यू होता है तो हम दोनों मिलके इसको डिस्कस करके ठीक करेंगे. ठीक है. ओके, वेरी गुड, थैंक यू. So let's start. One teacher and student में क्या बात होती है. जैसे पहले टीचर स्टूडेंट टीचर को बोलते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, ऐसा बोलते हैं. तो टीचर क्या बोलता है रिप्लाई में, कहता है यस ए वेरी गुड मॉर्निंग Ajay or Sheila, whatever it the student's name is, the student is telling, the teacher is replying, a very good morning Ajay or Sheila. Let's see, the student name is Ajay. Okay, so let's see, that means next student is saying, दूसरा student बोलता है सर या मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. मे आई कम इन सर, अंदर में आगे बोलते हैं. तो टीचर बोलते हैं यस, हाँ आप आ जाओ, अंदर आके बैठो. यस, तो टीचर क्या बोलते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, यस यू कैन कम इन एंड सिट, टेक योर सिट. ओके, नेक्स्ट. अभी क्या होता है, टीचर बोलता है कि आज तुम इतने लेट क्यों आ गए हो. ऐसे ही मतलब हम एक सिचुएशन बनाएंगे ताकि हम डिस्कशन का मजा लें. ठीक है, हम डिस्कशन का मजा लेने के लिए सिचुएशन बनाएंगे. जैसे टीचर बोल रहा है स्टूडेंट को, आप आज क्यों लेट हो, वाई आर यू लेट सो मच टुडे, वाई आर यू सो लेट टुडे, ऐसा भी आप बोल सकते हो. ठीक है. तो स्टूडेंट क्या बोलता है कि मुझे बस पकड़ने में देरी हो गई, मुझे बस पकड़ने में देरी हो गई. तो यह क्या बोलेगा स्टूडेंट, इंग्लिश में क्या बोलेगा, माई बस वॉज लेट टुडे, माई बस वॉज लेट टुडे. ठीक है. तो और एक बहाना, मतलब मान लीजिए ये स्टूडेंट ने नहीं बोला है, दूसरा कुछ बोला कि मुझे आज जल्दी मतलब उठने में, सवेरे उठने में देर हो गई थी. सो आई गॉट अप लेट टुडे. ठीक है, मुझे सवेरे जल्दी उठने, मैं थोड़ा जल्दी नहीं उठा, देर से उठा. आई गॉट अप लेट टुडे, दैट्स वाई आई वॉज लेट इन द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल में लेट आया हूँ. आपको समझ में आ रहा है अंजू मैम? यस मैम. हाँ, ठीक है. तो क्या बोलते हैं टीचर, इसके बाद टीचर बोलते हैं ओके कोई बात नहीं है, आप पहले से इसका ध्यान रखें और जल्दी आने की कोशिश करें. तो टीचर ने क्या बोला कि ओके नो इश्यूज, यू टेक केयर ऑफ योर टाइम एंड ट्राई टू कम ऑन टाइम इन द स्कूल. यहाँ तक आपको समझ में? कैन यू प्लीज रिपीट? या तो टीचर ने बोला कि आप कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, आज लेट हो गया, कोई बात नहीं है. आप सुन रहे हो ना अंजुमन, सुन सकते हो तो? Yes. कोई बात नहीं है, आज लेट हो गया, तो आप जल्दी समय का ख्याल रखिएगा आगे से, और जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, टाइम में आने की कोशिश कीजिएगा, स्कूल में टाइम में आने की कोशिश कीजिएगा. तो टीचर, व्हाट शुड बी द इंग्लिश ऑफ इट? ओके, नो इश्यूज, ट्राई टू टेक केयर ऑफ द टाइम एंड ट्राई टू कम ऑन टाइम इन द स्कूल. हो गया? आपको समझ में आया क्या इंग्लिश का? ओके, सो
इसके बाद टीचर स्टूडेंट बोलता है थैंक यू मैम। तो मतलब धन्यवाद, आपने मुझे कोई डाटा नहीं या ऐसा कुछ है ना कि डाटा नहीं और आपने मुझे चांस दिया दोबारा कि मैं टाइम पर आ जाऊं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, ओनली थैंक यू मैम विल बी द एनफ फॉर making his feeling his enjoy, expressing his enjoy, that means feeling of love and regards for the teacher। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, टीचर बोलता है आज का जो लेसन मैंने जो कल लेसन दिया था तो आपने पढ़ा है। तो स्टूडेंट व्हाट शुड बी द इंग्लिश, आई गेव यू होमवर्क यस्टरडे, सो डिड यू डू इट, क्या आपने किया इसे। तो स्टूडेंट बोलता है नहीं मैम, मैंने नहीं किया, मैं भूल गया था। ऐसे हम क्यों बता रहे हैं, इसको बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हम हम सीखना चाहते हैं, जितना बड़ा करेंगे वो हम थोड़ा इंग्लिश को थोड़ा और ज्यादा समझेंगे, है ना। तो क्या होगा, स्टूडेंट बोल रहा है नो मैम आई डिड नॉट लर्न इट, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, और आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। ओके, नो मैम मैंने होमवर्क नहीं किया, मैंने सीखा भी नहीं, आई डिड नॉट लर्न एंड आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। तो टीचर क्या बोलेगा, टीचर बोलेगा अच्छा तो ठीक है, तुम अभी सीखो, अभी सब करके दो मुझे, ठीक है, अभी आप मुझे करके दो, अभी आप सीखो। तो क्या होगा, ओके नो वरीज, यू लर्न नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई that you already learned, then we shall proceed। जैसे बोलता है कि अच्छा ठीक है आप अभी सीखो, सीखने के बाद हम आगे आपको पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा इस सवाल का जवाब। ओके, तो थैंक यू, स्टूडेंट बोलता है ओके मैम थैंक यू, आई विल लर्न नाउ एंड आई विल रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन इन द टेक्स्ट। मैं अभी सीखूंगा और सीख के आपको रिप्लाई करूंगा कि क्या आंसर है। ओके, हेलो हाँ बोलिए। यस मैम, एक्चुअली ड्यू टू नेटवर्क आई was able to hear you. After students conversation, no ma'am I did not learn it, or I did not do my homework, I have not listened, and I rejoined the class. Yes, and now the teacher is telling that no worries, कोई बात नहीं है, आप अभी सीखो, अभी सीख के मुझे इस क्वेश्चन का, टेक्स्ट में जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे अभी चाहिए। तो क्या बोलता है टीचर, नो वरीज, यू लर्न नाउ एंड देन रिप्लाई मी व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द टेक्स्ट। आपको समझ में आया, अभी तक यहाँ तक समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, सो अभी क्या स्टूडेंट बोलेगा कि ओके मैम मैं अभी सीखूंगा और अभी सीख के आपको ये इसका आंसर बताऊंगा। सो ओके मैम, स्टूडेंट जो बोलता है इंग्लिश में, ओके आई विल लर्न नाउ एंड आई विल रिप्लाई टू दिस आंसर और टू दिस क्वेश्चन in the what is written in the text, and so after that teacher is saying okay you do it and complete it today itself। so उसने टीचर क्या बोलता है, ओके आप इसे करो और आज ही इसको खत्म करना है। और स्टूडेंट बोलता है ओके मैम थैंक यू। हो गया आपका, हो गया। आप टीचर और स्टूडेंट के कन्वर्सेशन को आपने सुना, कैसे क्या होता है। हेलो हाँ, टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन यहाँ तक हो गया, मतलब चला है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ऐसे कन्वर्सेशन है, मतलब मान लीजिए जैसे अभी आपको मतलब सुनना है कि कैसे क्या होता है, मतलब यही दिस इज द कन्वर्सेशन, दिस इज द डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, एंड दिस इज द if we can make this question and answer very well, then we can create a situation and we can talk in English. That's the plus point of making the environment of English, how to speak in English. Okay,
So thank you dears, thank you so much.